Hello everyone, warm good morning to all of you. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଆଜି SSB PGDର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 20କୁ। ଆଶା କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ଜାରି ରଖିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଲାଇକ୍ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଲାଇକ୍ ପାର୍ଟ 20ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି। ତ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26ରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା 25 ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ସେ କହୁଛନ୍ତି according to Plato, justice meant that a class should its work in social cadre or political plan to which it was called by its peculiar properties. Then option B, society should defend with all its might the right of its member. Then option C, all the classes and groups of society should be treated equal. Then option D, there should be an elaborate system of law to provide justice to the citizen. I guess now it is visible to all. ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପିକ୍ଚରରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଭିଜିବଲ୍ କିଭଳି ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଡ୍ ୱାର୍କ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ କେଡର or political plan to which it was called by its peculiar properties। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ କେଡର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲେ ଫିଲୋସଫର ହଉ, ସୋଲଜର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ୍ଲାସ୍, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଲାଇକ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ରାଇଟ୍। ତ ସୋସିଆଲ କେଡର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ୱାର୍କ ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ୱାର୍କ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଏ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍। ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ permanent, B keeps on changing according to time and place, option C purely temporary, and option D a legal contract। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ଦ୍ୟାଟ୍ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ ଫିଚର୍ସ କହିପାରିବା ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍। Then we shall move to question number 28, that utilitarianism is associated with the name of option A Locke, B option A Lasky, B Locke, C Bentham, and D Adam Smith। I guess now it is visible to all, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ।
ये आपणकर आंसर हो ऑप्शन सी। जो आम यूटिलिटेरियनिज्म कथा कहते तो बेंथम लाइक तार जड़े वन ऑफ द इम्पोर्टाट स्पोक पर्सन आर रईटिंग रू ही द कनसेप्ट आम प्राइमरीली सिस्टमेटिकाली आमर देखा पाई आम राइट। तो ऑप्शन आपंकर सी हो गला ये क्वेश्चन नंबर 28। Then we shall move to question number 29. Who among the following believed that the private property is essential for the development of individual's personality? So private property is essential for the development of individual's personality. Option A Lasky, B J.S. Mill, and C Adam Smith, and D Karl Marx. ये तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे पर्सनाली मु बिलीव करे। तो ये आप लास्ट को लाइक हटेदेवे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। कार्ल मार्क्स तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कथा केबे कहबेनी, एटा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गला। बाकी रहला आपनकर सी, बाकी रहला आपनकर बी एंड सी। बी एंड सी ऑप्शन रहला कौन ना जे.एस. मिल आउ आपनकर आडम स्मिथ। Adam Smith or J.S. Mill. The private property is essential for the development of individual's personality. आपण डिसाइड कर देबे आर आंसर कोन हो J.S. Mill और Adam Smith भितरु B एंड C रु उटा आपनर आंसर ही पारिबो राइट। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 30 जोटा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फोर्स, B political force, C religious force, and D material force. ये आपनकर आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि मार्क्स कर मतरे हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट द मटेरियल फोर्स राइट। तो से हमर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो हमर एक्सप्लेन सी करूचंती ना मटेरियल इज द फोर्स लाइक दैट रेगुलेट द हिस्ट्री। ओके सो थ्रू आउट द हिस्ट्री the kind of the material means of production that determine the what the rule regulation of the society. The history is the product of material force right। tapare next question number 31। The rule of law is one of the fundamental principle of the option A German constitution, B British constitution, C French constitution, D USA constitution। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपनकर आंसर हे ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे इंपोर्टेंट फीचर होचे आपनर कोन रूल ऑफ लॉ राइट। तो एटा आपनकर ऑप्शन बी हे गला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला आपनकर क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन बी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन डी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ। आम देखिले जे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट फीचर रूल ऑफ लॉ इज नॉट ए फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉ बट the features of rule of law is most appropriate for the British constitution right। तापर क्वेश्चन नंबर 33 आमे जिबा the constitution of China stipulates that all power goes to option A legislature, option B people, option C chairman people of republic, option D president। The constitution of China stipulates that all power goes to
The Constitution of China stipulates that all power goes to the कौन हम आंसर एठे ऑप्शन हम ऑप्शन बी द पीपुल जदि आम आर्टिकल 2 देखा चाइनार से लिखा जाइए कौन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ द चाइना स्टिपुलेट्स दैट ऑल पावर गोज टू द पीपुल राइट पीपुल तो ये आपंकर आंसर हो ऑप्शन बी क्लियर तापर क्वेश्चन नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 34 द ड्राफ्ट ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड इन द ईयर ऑप्शन ए 1954 बी 55 सी 59 एंड डी 1960 एटा आपनकर आंसर हो ऑप्शन ए 1954 द ड्राफ्ट ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड राइट तो 54 आपनकर आंसर हो 54 रे आपनकर आमे कहि परिबा स्टैंडिंग कमिटी क्रिएट हो किंबा विभिन्न प्रकार आपनकर जो चाइना रो कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑर्गन अछि बा तार सिस्टम अछि क्रिएट हेतिला राइट क्वेश्चन नंबर 34 ए गला तापर क्वेश्चन नंबर 35 द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन सी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एंड डी नन ऑफ द एबव एटा आपनकर आंसर हो ऑप्शन बी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन राइट तापर आपनकर क्वेश्चन नंबर 36 रे आपनकर अछि द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज ए डेफिनेट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑप्शन ए यूके बी इंडिया सी कनाडा डी ऑस्ट्रेलिया এটা আপনার অপশন এ হয়ে जोटा कि यूके बा ब्रिटेन रो लाइक पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी होची गोटे डेफिनेट फीचर्स राइट तापर क्वेश्चन नंबर 37 द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट द रेसिडुअरी पावर इन ऑप्शन ए द सेंटर बी द स्टेट ऑप्शन सी बोथ द सेंटर एंड द स्टेट ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव तो क्वेश्चन नंबर 37 आपनकर आंसर एट कौन हो आपनकर आंसर रेसिडुअरी पावर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो का पाखर थाए ना ऑप्शन आपनकर एट हो कौन बी द स्टेट्स रे राइट तो एटा हो आपनकर 37 रो आंसर बी तो नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर 38 हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए राइट तो बर्तमान 2024 रे एबे बर्तमान प्रेसिडेंट की अछि आ के दिन पर आमे इलेक्शन देखियो जाउचंती सो होप इन द मंथ ऑफ नवंबर माने हमर इलेक्शन हबो शेड्यूल हेची यूएसए रे तो बर्तमान की प्रेसिडेंट अछंती करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑप्शन ए बाराक हुसैन ओबामा बी जॉन एमसी चेन एंड सी जी डब्ल्यू बुश एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव से आपको सब माने लाइक ये कौन मुझे थाए जे यूएसए रो वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम उपरे आपन सब नजर रखिथे इलेक्शन बर्तमान होगा जाऊँगी इलेक्शन रिजल्ट कौन आसूची राइट तो आई गेस बर्तमान आपन तो पेपर बनी जाइए जो मान 17 माने 17 नवेम्बर एग्जाम अच्छी एसएसबी पीजीटी रो तो बर्तमान तो पेपर से मैंने प्रिपेयर कर राइट तो किंतु यूएसए विषय किसी ना कि गोटे क्वेश्चन आम देखा पाइबा कारण बर्तमान यहाँ करेन्ट अच्छी आम सिलेबस यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आम पढ़ुंट राइट तो बेटर हम आप यूएस टाक भलसे पढ़ीदे कॉन्स्टिट्यूशन टाक जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ओके सो ये आप आंसर हो कौन ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव राइट तो बर्तमान करेन्ट प्रेसिडेंट किए ना राइट तो ये आप कौन हम ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 38 तापर क्वेश्चन नंबर 39 आम जा सी कहते क्वेश्चन नंबर 39 रे देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू इन द यूके बिकॉज ऑप्शन ए द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज इटसेल्फ ए जुडिशियल बॉडी ऑप्शन बी द पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग
Option C, the executive is accountable to the legislature. Option D, there is no written constitutions, right? तो कौन हम आंसर आपणकर ये नो जुडिशियल रिव्यू इन यूके बिकज ऑफ कहीं जुडिशियल रिव्यू ना यूके रे कौन कारण ये हो पार तो ये आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो ऑप्शन ए को जी द हाउस ऑफ लॉर्ड इज इटसेल्फ ए जुडिशियल बॉडी सो यहाँ गोटे एप्रोप्रिएट कज नुहे जुडिशियल रिव्यू यूके ना बोली तो ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट करदे तापर आप आसबे ऑप्शन सी को आम देखा टे बी पर जा द एजुकेटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर्स यहाँ गोटे कज ना आमर इंडिया एजुकेटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर तमाने आमर तो अच्छी राइट तो ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करदे तापर आपण आसबे कौन ऑप्शन आपणकर बी आउ डी रहा राइट तो पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग राइट पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग तो जदि आप यूके रे देखिए यूके हूँ कौन पार्लियामेंट इज सोवरेन पार्लियामेंट इज सुप्रीमेसी दैट मीन्स व्हाट देयर इज नो पावर ऑफ व्हाट जुडिशियल रिव्यू दैट मीन्स पार्लियामेंट इज सुप्रीम पार्लियामेंट इज सोवरेन राइट and the parliament is that the things made by the parliament is not wrong so option आपन बी appropriate हो जिवो जोटा कि parliament can do no wrong that means judicial review दरकार नहीं यदि parliament wrong करता जमी इंडिया रे कौन से लॉ हेले parliament द्वारा judicial review आमर होई थाए किंतु यूके रे कौन अच्छे parliament is supreme राइट तो दैट्स वाई तांकर सेटे आउ कौन जुडिशियल रिव्यूर कनसेप्ट आसे ना ऑप्शन आपणकर बी हम तो ऑप्शन ए एलिमिनेट करदे ऑप्शन सी एलिमिनेट करदे बी आउ डी रहा आपनर ऑप्शन बी ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्वेश्चन नंबर 39 ରୁ 40 दैट व्हिच कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑप्शन ए इंडिया बी यूएसए सी ब्रिटेन एंड डी स्विट्जरलैंड डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तो आप जानते समस्ते ऑप्शन आपणकर सी हो गला द ब्रिटेन हैज नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सेमती आपड़ जब कहे विश्व में क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो मन रखिए 5टा कंट्री रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना राइट आ से 5टा कंट्री छाड़देले आप बाकी जो रेस्ट ऑफ रहीगला समस्त रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी राइट ना नहीं तो ये जिनटा आप बुझार अच्छी देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसीगला क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी मेंटेन्स दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड टेकन एज द इंटरैक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन ए द रियलिस्ट थ्योरी बी द सिस्टम थ्योरी सी द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड डी द डिसीजन मेकिंग थ्योरी तो ये आपंकर आंसर कौन हम यहाँ तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा भल क्वेश्चन यहाँ आपंकर कनसेप्चुअल क्लैरिटी दरकार ये राइट तो इंटरैक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी तो यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन ए रियलिस्ट थ्योरी जोटा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड बी टेकन एज इंटरैक्शन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी I know that most of people will be confused here, but I will specially recommend to you go and read the different theory when we talk about the international approaches. So you will be more clear about that the realist theory most appropriate for this statement. So question number 42, the Cold War means option A the war of words, the war without arm. The war in which the arms are not used but the whole atmosphere of war remain the same between the rival country and the option D the war with sticks. The Cold War means तो ये आपंकर ऑब्वियस क्वेश्चन ऑप्शन आपंकर सी हो द वार इन व्हिच द आर्म आर नॉट यूज्ड बट द होल एटमॉस्फेयर ऑफ वार रिमेन द सेम बिटवीन द राइवल कंट्रीज. Then question number 43, an easing of tension between the states can be termed as option A delegation, B declaration, C demarche and D detente.
क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो ऑप्शन ए डी डिटांड जोटा कि टेंशन बा फियर फैक्टर कथा गोटे कही थाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए पेरिस, बी लंडन, सी न्यूयॉर्क एंड डी बर्लिन। एटा ऑप्शन आपनकर सी हो न्यूयॉर्क रे आपनकर कौन अच्छी हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ जोटा कि 1945 रे फॉर्म होता। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हु हैज डिफाइंड द नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ पावर। ऑप्शन ए कापलान, बी जॉर्ज केन्स एंड ऑप्शन सी मॉर्गेनथाउ एंड डी किसिंगर। यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो मॉर्गेनथाउ जी कि 6 प्रिंसिपल रे हाईलाइट करथिले जे नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ द पावर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। ऑप्शन बी इंप्रूविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन, ऑप्शन सी इंप्रूविंग द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द रीजन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जोटा कि वर्तमान तार रिलीवेंस आमे कह गले पूरा डाइल्यूट अवस्था अच्छी बिकॉज ऑफ नॉट द कोऑर्डिनेशन एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग द कंट्री ऑफ सार्क। बट ये आपन आंसर हो ऑप्शन डी जदि आप देखिए सार्क रे आपन वेलफेयर ऑफ पीपल, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ओके राइट। तो से कथा आप सार्क रे देखिए पाइपर। सो सार्क इज इम्पोर्टेंट लाइक रीजनल फॉर्मेशन व्हेन आई टॉक अबाउट आसिया, सो साउथ एशियन पार्ट। So that is how the very important of the SARC from the exam point of view. So especially do remember the number of summit hosted by India and who is the last country and what are the current relevance of SARC and the recent update and development regarding the SARC, right? तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 द SALT SALT strategic arm litigation treaty was formally signed on 26 May 1972 with a view option A to curb the race in nuclear arm between the two superpowers, option A USA and USSR, option B to refrain non-nuclear country either from receiving the weapons or manufacturing them, option C all of the above and option D none of the above। ये आपनर ऑप्शन ए हो आंसर जोटा कि सॉल्ट जोटा कि आप यूएसए और यूएसएसआर मध्य 1972। इट्स वेरी इंपोर्टेंट लाइक ईयर ऑल्सो, डू रिमेंबर दैट थिंग। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम आसवा दैट क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच कंट्री डिड नॉट साइन द सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ऑप्शन ए इंडिया, बी ईरान, इंडिया एंड इराक, ऑप्शन सी इंडिया, इराक एंड ईरान, ऑप्शन डी इंडिया, इराक, ईरान एंड लीबिया। तो ये आपंकर आंसर कौन हम व्हिच कंट्री डिड नॉट साइन द सीटीबीटी। तो ये आपनर आंसर हम ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन कौन हम ये ऑप्शन ए हम। ये मुझे कहवाई चेष्टा करी सीटीबीटी दुईटा कनसेप्ट अच्छे राइट, आपको बुझे चेष्टा करिए आम गोटे हूँ साइन आ गोटे राटिफाइड। केतेजन कंट्री साइन कर कंट्री राटिफाई कर नथिले राइट, आउ केजन कंट्री
साइन करनथिले राटिफाई करनथिले दुईटी जा कोटा मध्य करनथिले जो कंट्री साइन करना सेमानकर नाम हूँ साउथ कोरिया इंडिया और पाकिस्तान राइट बाकी कंट्री अच्छा जो मैंने साइन कर राटिफाई करना से आपंकर आसबरी यूएस आसबरी इटसेल्फ राइट तो से आप ईरान कथा कहींपारे राइट आप इराक कथा कहींपारे इराक तो साइन कर राइट तो ये अप्रोप्रिएट आंसर हम ऑप्शन ए आई नो मोस्ट ऑफ पीपल विल बी confused here but go and check that CTBT that India did not signed nor signed neither signed nor ratified अन्य पक्षरे आपण जदि कहिबे ईरान कथा ईरान कौन करछन्ते आपनर सेठी से साइन करछन्ते किंतु राटिफाई करि नांती राइट तो एठी आपनर आंसर है जब ऑप्शन ए जोटा कि CTBT कंट्री डिड नॉट साइन इंडिया पाकिस्तान मध्ये साइन करनथिले साउथ कोरिया मध्ये साइन करनथिले मन रखिबे क्लियर आगु जीवा जदि किसी डाउट अच्छी मेसेज करें दिस इज नॉट प्रॉब्लम सो क्वेश्चन नंबर 49 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर टू ए ट्रेड ब्लॉक क्रिएटेड थ्रू रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन बी द विजन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑप्शन सी द नॉर्थ साउथ डायलॉग ऑप्शन डी द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक टाइगर ऑफ द आसियान रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू ये आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे जोटा कि ऑप्शन ए कहले ट्रेड ब्लॉक क्रिएटेड एटा तो इटसेल्फ रॉन्ग हो गला बाकी रहा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आप नॉर्थ साउथ डायलॉग ऑप्शन सी देखिए ये एलिमेंट हो गला तापर आप रहा कौन बी एंड डी डी देखा द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स टाइगर ऑफ आसियान्स जोटा कि आसियार केतरा कंट्री अच्छी जोटा साउथ ईस्ट प्राइमरीली साउथ ईस्ट एशियन रे से आसियान टाइगर बोली कहुए राइट तो ऑप्शन डी आपनकर रहा देन बी आसला द विजन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू ये मोर टिके ऑप्शन डी और सी रे टिके बी वे कन्फ्यूज अच्छी मुझे आपको लेटर जनईदेवी अदरवाइज यदि आप जानते देन गो टू गो राइट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 50 ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज ऑप्शन ए द ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट वर्ल्ड मार्केट ऑप्शन बी फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम इज सेंटर्ड इन ए सिंगल स्टेट ऑप्शन सी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ फार्म इज ऑटमोस्ट इंपोर्टेंस ऑप्शन डी फॉरेन कैपिटल ट्रांजैक्शंस तो यहाँ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन आपनकर ऑप्शन ए हो आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑप्शन ए महात्मा गांधी सरस्वती दयानंद सरस्वती ऑप्शन सी नेहरू एंड ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो ये आप आंसर है ऑप्शन डी जोटा कि समस्त जानते राजा राममोहन रॉय देन एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन ऑप्शन ए वायलेंस नॉन वायलेंस सी वायलेंस इज द लास्ट रिजल्ट एंड ऑप्शन डी टेररिज्म एंड सैबोटेज तो एक्सट्रीमिस्ट बिलीव ऑन व्हाट ना ऑप्शन ए वायलेंस आपनर आंसर हो देन अरविंद घोष रोट ऑप्शन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ऑप्शन डी मॉडरेट मूवमेंट ऑप्शन सी द डिवाइन लाइफ एंड ऑप्शन डी द केसरी तो अरविंद घोष रोट व्हाट द ऑप्शन सी डिवाइन लाइफ ऑल ऑफ अस नो दैट देयर इज नो any scope of doubt then next question the Mahatma Gandhi launches satyagraha movement in 1919 जोटा कि ऑप्शन ए protest against enactment of Rowlatt Act a protest against British policy towards Turkey a protest against India inadequate form introduced by the act 1919 a protest against the enactment of 1919 okay तो ये आपनर आंसर कौन हो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 54 देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्ना गेव इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एसएसबी देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अट्रैक्ट आशा करथिबे आपन देखा जाउथिबो क्वेश्चन विजिबिलिटी ऑप्शन ए वाइडर पब्लिसिटी देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस
Option C, less publicity than private administration. The same amount of publicity of private administration. Public administration attract. कौन हम आंसर ये आपंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अट्राक्ट ऑप्शन ए हो आंसर ये क्वेश्चन नंबर 56. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. हर्बर्ट साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज. ऑप्शन ए बिहेवियर अल्टरनेटिव, बी पॉलिसी साइंस, सी मिक्सड स्कैनिंग एंड डी डिसजॉइंटेड इंटरमेंटालिज्म. ये आपंकर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 57. ऑप्शन ए बिहेवियर अल्टरनेटिव. जो आम हर्बर्ट साइमन को पढ़ुंट, हर्बर्ट साइमन प्राइमरली गोटे बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग्स करते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे, एवं से चेस्टर बर्नार्डकर फिलोसफी रु पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते. हर्बर्ट साइमन आमर जो मेथड यूज करते आम कहू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट. तांकर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हूँ बाउंडेड रैशनैलिटी, राइट. देन से बुक लिखिले एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, से नोबेल प्राइज पाई. आपड़ इयरटा देखिए केवे नोबेल प्राइज पाई, राइट. तो ये सब जिन गुड़ाक मन रखिए जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट फॉर योर व्हाट SSB exam. The essence of communications not for SSB, it's a question of paper 1 of UGC. आम कही परिबा क्वेश्चन नंबर 59. Who among the following is an officer of parliament is called cars and eye of the public account committee? Option A president, B vice president, C speaker and D comptroller general of India. बहुत भल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. से कहते who among the following is an officer of parliament and is called car and eye of the public account committee. Nice question. एमती क्वेश्चन प्रिपेयर होबार अच्छे. आमर एसएसपी कौन करे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करवा लगी. बहुत क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता आप देखिए एग्जाम रे, राइट. कि क्वेश्चन बनवा इट्स नॉट ए इजी जॉब. इट्स टेक डेडिकेशन, इट्स टेक टाइम एंड इट्स टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो ऑप्शन एटा आपनकर डी हो जोटा कि आम CAG को कहू गोटे भल मित्र बोली कहार पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट. पब्लिक अकाउंट कमिटी रे केते मेंबर अछंती दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट. टोटल केते मेंबर अछंती, केबे पब्लिक अकाउंट गठन होइतिला, तार इलेक्शन रो प्रोसेस कोन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होच कोन द इलेक्शन मेथड ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी. एटा यूसी नेट रे पचारथिला, राइट. तो ये सब जिन गुड़ा आप मन रखिए. तार समय सीमा के पब्लिक अकाउंट कमिटी जो मेंबर बा टर्म अच्छे टर्म, राइट. तो से जिन मन रखिए 1 ईयर. मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमिटी गोटे मेंबर हो पार, चेयरमैन हो पार कि ना हो पार ना मिनिस्टर, कारण पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन भी गोटे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने आप एजुकेटिव उपर जब मिनिस्टर से मेंबर हो गला ताहले आप जानते केते बहुत बहुत बढ़िया भल हम, राइट. तो ऑप्शन आपंकर 59 डी हो जोटा कि इंपोर्टेंट यानी CAG वेरी वेरी इंपोर्टेंट. राइट नाउ जी इंडिया CAG अच्छा सी आम गर्व करवा सी जन ओडिशा, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 60. ब्यूरोक्रेसी इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ. ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी ऑल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ब्यूरोक्रेसी इज एन इंपोर्टेंट फीचर. तो ये आप कौन हम ब्यूरोक्रेसी इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कौन ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑप्शन सी ऑल गवर्नमेंट्स. तो ये आप कौन करेंगे ये मुझे जानी बहुत ये कन्फ्यूजन हम एवं क्वेश्चन से भाया फ्रेम कर लाइक जदि आम देखा ब्यूरोक्रेसी कौन ब्यूरोक्रेसी लाइक ये कौन ब्यूरोक्रेसी इट इज नॉट लाइक ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आम कहीपर. ब्यूरोक्रेसी कौन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ना बा ब्यूरोक्रेसी द्वारा आम कहीपर जे लाइक एटा गोटे पीपुल सेंट्रिक बोली ना. तो जो आम देखिए ब्यूरोक्रेसी आप देखिए गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे मध्य ब्यूरोक्रेसी थाए. से इंपोर्टेंट फीचर कहते. तो इंपोर्टेंट फीचर आम ये प्रायतः डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहवा किंतु अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट रे मध्य ब्यूरोक्रेसी गोटे इंपोर्टेंट फीचर थाए कारण पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने तो ब्यूरोक्रेसी दरकार. तो ये मुझे ऑप्शन सी रे जी ऑल गवर्नमेंट रे जी. ब्यूरोक्रेसी इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जोटा कि आम देखिले कौन डेमोक्रेसी रे थाए कि नॉन डेमोक्रेटिक रे मध्य थाए.
कारण ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कोटे मध्य आपण देखिबे एटा राइट तो ऑप्शन सी जीबे आपण कमेंट रे जणेबे जार आंसर कोन हेबो राइट अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ माय नॉलेज माय अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी हेबो लेट्स सी द आंसर की कोन अछि यार मध्य ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड जदि भी जहाँ भी आम क्वेश्चन डिस्कसन करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 रू 60 जदि किसी डाउट अच्छी कि क्वेश्चन आपको फील हो कि प्रॉब्लम अच्छी देन यू कैन रेज योर हैंड एंड ए respectable comment is welcome and appreciable so thank you everyone for being part of this lesson I hope you guys आपण माने उपभोग करले क्लास को एंजॉय मध्य करथिबे जदि भी किछि प्रॉब्लम अछि मेसेज करि परिबे जदि आपन को चैनल को भल लागुथिबो गोटे सब्सक्राइब कर देबे सांग मान सहित लाइक कर गोटे लाइक कर देबे एवं सांग मान सहित शेयर कर देबे सो आशा करूची एटा आपन भल लागिथो सो थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।